पंखा रख के चलते हैं हम। इसमें रीलें वगैरह लगी हुई हैं, जब मीटर वगैरह सारे वायरिंग जी जी। इसमें इनमें कुछ नई रीलें भी लगी हैं जी, जैसे इंडिकेशन शो करी हुई। क्या बोलते हैं कौन सी रील है? ਆ ਕਿਹੜੀ ਰਿਲੇ ਸੀ ਇਹ? ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ 220 ਕੇਵੀ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੈਟਰੀ ਰੂਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਟਰੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ DC ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਸਪਲਾਈ ਕਿਤੇ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ DC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਰੂਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਦੋ ਸੈੱਟ ਆ, ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 2। ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਅਰ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਿਡ ਬੈਠ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ 48 ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਸੈੱਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰਜਰ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਰਜ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਰਜ ਕਰੰਟ, ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ, ਬੈਟਰੀ ਕਰੰਟ, ਲੋਡ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰੰਟ, ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵੇਟਰ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ 220 ਵੋਲਟੇਜ, 20 ਤੋਂ 30 ਐਂਪੀਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ DC ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸੌਰੀ DC ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ C&R ਪੈਨਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆ ਸਾਰੇ DC ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ AC ਸਪਲਾਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ DC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਿਲੇਆਂ ਉਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ
ਆ ਮੀਟਰ ਨੇ ਅੰਪੇਅਰ ਮੀਟਰ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਰਿਲੇ ਤੇ TCSR1 ਰਿਲੇ ਤੇ DC ਰਿਲੇ, DC ਫੇਲ, AC ਔਰ DC ਚੇਂਜਰ, ਇਹ ਰਿਲੇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ C&R ਪੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ CB ਕਲੋਜ਼ ਆ ਤੇ CB ਓਪਨ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਆ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਪਰਿੰਗ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੀ। ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ DPR ਲੈ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ 132 ਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ 220 ਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ 220 kV ਦੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਗ੍ਰਿਡ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। यहाँ पे 220 के 6 सर्किट आए हुए हैं जी। कौन सा सर्किट 2 सर्किट सोनटा से आए हैं, 2 पेवा से और 2 साबाद से आए हैं। जी अलग अलग 6 सर्किट आए हैं 220 के। जी। अब जनरेटिंग एंड पे क्या होता है कि जो वोल्टेज जनरेट होती है वो 11 kV भी जनरेट होती है, वहाँ पे उसको स्टेप अप कर देते हैं जी। वोल्टेज को। स्टेप अप करने का रीज़न ये है कि अगर हम स्टेप अप ना करें तो उसमें करंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वोल्टेज की क्वांटिटी कम होगी। जी। मतलब पावर तो सेम रहेगी, तो करंट को ट्रांसमिट करने में ना बहुत सारी दिक्कत आती है। एक तो लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं जी। एक लॉसेज की वजह से उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको स्टेप अप कर देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। जी। वहाँ से स्टेप अप करके वोल्टेज बढ़ा के करंट की को कम करके आगे ट्रांसमिट किया जाता है। जी। 11 kV से 400 kV पे भी स्टेप अप कर दिया जाता है, 220 पे भी, 132 पे भी कर सकते हैं, 66 पे भी कर सकते हैं। जी। ठीक है। वहाँ से स्टेप होने के बाद यहाँ पे स्टेशन पे आ जाता है। जी। यहाँ पे आ जाता है अपने यहाँ पे स्टेशन पे 220 के ये आगे सर्किट। अब यहाँ पे क्या है कि 100 MVA के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जी। जिसकी HV साइड 220 वोल्ट है और LV साइड 132 kV है जी। 220 साइड हमारा जो है ये लाइनें आई है इसकी सप्लाई जाएगी 100 MVA पे, और उसको स्टेप डाउन दोबारा करा जाएगा 132 kV में। 132 का फिर हमारे यहाँ पे 6 सर्किट है, उसको दोबारा 132 kV की जो सब स्टेशन है उन पे भेजा जाएगा जी। वहाँ अगेन उसको स्टेप डाउन किया जाएगा 132 से 66 पे भी कर सकते हैं, 11 kV भी कर सकते हैं और 33 kV पे भी कर सकते हैं। सर इसको हम डायरेक्ट 11 में कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे 132 को डायरेक्ट 11 पे करना हो। हाँ, लेकिन उसके लिए ना एक कहता है कि अगर आपको 11 kV पे करना है तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड है ना वो नज़दीक होना चाहिए जी। अगर वो दूर होगा और आप 11 kV पे करोगे तो आपने डायरेक्ट 132 से 11 करा तो इसका मतलब करंट ज़्यादा बढ़ गया, स्टेप वोल्टेज ज़्यादा स्टेप डाउन करी तो करंट उतना ही स्टेप अप हो जाता है जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड नज़दीक होना चाहिए। अगर नज़दीक नहीं होगा ना करंट ज़्यादा होगा तो लॉसेज बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो अगर दूर है तो 132 से आप 66 kV में या 33 kV में कन्वर्ट करें। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड अगर दूर है तो जी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन एंड नज़दीक है तो 11 kV में कन्वर्ट कर लें जी। बस। फिर उसको स्टेप डाउन कर लें। उसके बाद यहाँ से 132 वाले में जाएंगे, 132 वाले 33 में कन्वर्ट कर देंगे, 33 kV सब स्टेशन के लिए। 132 kV से 33 kV में कन्वर्ट होगी, 33 kV से फिर 11 kV में कन्वर्ट होगी, 11 kV से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे चली जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू, जो 11 kV से
0.4 में कन्वर्ट करता है, जी 0.415 कर देता है, या फिर फेस टू फेस 415 वोल्ट होती है, और फेस टू न्यूट्रल होती है 220 वोल्ट, ठीक है जी, जो हमारी गर्म हो जाती है। ठीक है जी, ठीक है, उस हिसाब से होता है। अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगे हैं 100 MVA ट्रांसफार्मर लगे हैं। जी एक लगा हुआ हमारा जो T3 है वो 16 MVA का है। ठीक है जी, जो T3 हमारा 16 MVA का वो 132/11 का है। 11 का डायरेक्ट 132 से 11 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड नज़दीक है। नज़दीक है, ठीक दुराड़ा है, हमें पावर सप्लाई भेजेगी, ठीक है जी, वहाँ पे भेजेंगे। ठीक है सर, कोई भी 220 की सप्लाई आ रही है, आइसोलेटर है। जी सबसे पहले LA लगी हुई, CVT लगी हुई, आइसोलेटर लगे हुए, CT लगी हुई, सर्किट ब्रेकर लगे हुए, उसके बाद ये पोस्ट इंसुलेटर है, उसके बाद फिर बस आइसोलेटर है। ठीक है जी, यहाँ पे जो आइसोलेटर लगे हैं वो लाइन एंड अर्थ आइसोलेटर है, और इधर बस आइसोलेटर है। दो बस बार दोनों बस बार के लिए अलग होगी, इधर वाली बस 1 है, उधर वाली बस 2 है। ठीक है जी, बस बाकी तो ये है कि यहाँ पे जो आइसोलेटर लगे हुए हैं वो मैनुअली हम कर सकते हैं, और ये CT है, CT का मेन पर्पस क्या है कि करंट मेजर करना और प्रोटेक्शन में हेल्प करना। ठीक है जी, ठीक है, मतलब इसके अंदर एक तो मीटरिंग के लिए जाएगा अंदर सप्लाई, और एक प्रोटेक्शन के लिए जाएगा, और वहाँ से अंदर जाएगी जो अंदर CNR पैनल लगे हुए हैं, उन पैनल के थ्रू, रिले के थ्रू कमांड दोबारा सर्किट ब्रेकर पे आएगी। अगर कोई अबनॉर्मल कंडीशन है, अगर नॉर्मल है तो सर्किट ब्रेकर चलता रहेगा, नहीं तो रिले के थ्रू अबनॉर्मल कंडीशन में, मतलब फॉल्टी कंडीशन में, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर पे कमांड आ जाएगी और सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देगा। ठीक है, ठीक है, और बाकी ये CT है जो मीटरिंग के लिए भेजते हैं। अंदर हमारा अमीटर है, वोल्ट मीटर है, अमीटर CT से जाएगी अमीटर पे, और जो लाइनों के लिए डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले होती हैं, ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले होती है, उन पे जाएगी, और वोल्टेज के लिए यहाँ से सप्लाई जाएगी। वोल्ट वहाँ पे देखो PT लगी है जो बस के क्रॉस है, और ये CVT है जो लाइन के क्रॉस है। ये CVT जो लाइन की वोल्टेज होएगी अंदर जाएगी वोल्ट मीटर में, और PT बस की वोल्टेज भेजेगी। ठीक है जी, प्रोटेक्शन का ये सिस्टम हो गया। अब 220 की भी लाइन है, उस पर जो प्रोटेक्शन होती है मेनली, एक तो होती है TPR, डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, जिसके अलग अलग जोन होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 जी, जोन 1, 2, 3 तो देखते हैं फॉरवर्ड, और जोन 4 देखते हैं रिवर्स। रिवर्स, जोन 1 का रेंज होती है 80%, और ये 30 to 60 मिली सेकेंड में ट्रिप कराती है। जोन 2 होता है 120%, जी, ये जो होता है 120%, ये 80%, ये लाइन लेंथ का होता है। इसके बाद उसकी रेंज होती है 60 to 150 मिली सेकेंड। जोन 3 आ जाता है। जोन 3 जो नेक्स्ट स्टेशन है ना जहाँ से सप्लाई आ रही है उसको भी क्रॉस कर जाएगी, मतलब 150 से 220% तक चला जाता है वो। और जोन 4 है वो रिवर्स में काम करता है, जी, रिवर्स में 20%, मतलब अपने स्टेशन में पीछे कहीं फॉल्ट पड़ा है तब वो भी कवर कर जाएगा। कवर कर जाएगा। लेकिन उसके लिए ना वो बहुत रेयर कंडीशन में होता है, उसका जो फॉल्ट टाइम है, फॉल्ट क्लियरेंस टाइम है लगभग 450 मिली सेकेंड के आसपास। अच्छा, हमारा ब्रेकर 30 से 60 मिली सेकेंड में ट्रिप हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा ना तो जितनी देर फॉल्ट रहेगा उतनी ही देर उतना ही ज़्यादा नुकसान आएगा। तो इसलिए या तो इंस्टेंटेनियस हो, इंस्टेंटेनियस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो 30 से 60 मिली सेकेंड में होना चाहिए जी, तो अगर कहीं से जोन 2, जोन 3 या जोन 4 आ रहा है ना वो डिजायरेबल नहीं है, पर अब जब आ ही रहा है तो क्या कर सकते हैं, वो तो आएगा, क्योंकि जहाँ पे भी है ना वहाँ पे जोन 1 की प्रोटेक्शन खराब हो चुकी है। तो जल्दी से जल्दी ट्रिप कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे CVT लगाई हुई है, CVT लगाई हुई है। CVT क्या करेगी, कम्युनिकेशन भेजेगी दूसरे एंड पे, ठीक है जी, वो कम्युनिकेशन कैरियर भेजेगी, और एक PUTT होती है, परमिसिबल अंडर रीच ट्रांसफर ट्रिपिंग स्कीम। वो कैरियर के अंदर जो पैनल लगे हैं ना, यहाँ से अंदर जो कैरियर वाले पैनल आप देख के आए थे उसके थ्रू दूसरे स्टेशन भेजेगी, ताकि अगर यहाँ पे जोन 1 आया ना तो वहाँ पे तुरंत ट्रिप हो जाए, ना कि वो जोन 2 में आए।
ठीक है मतलब जोन 2 आने से पहले ही वहाँ पे ट्रिप हो जाए 30 से 60 मिली सेकेंड। ठीक है मतलब फॉल्ट जितनी जल्दी आइसोलेट होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है सर। तो अब 220 के लिए रिले है जो DPR डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, जिसकी 4 रिले होगी। उसके अलावा बैकअप रिले होती है ओवरकट अर्थ फॉल्ट। जी ठीक है, इन केस DPR वैसे तो हर एक पैनल पे 2 DPR रहते हैं, और अब तो ये कर रहे हैं कि अलग अलग कंपनी के दे रहे हैं ताकि रिलायबिलिटी बढ़ सके। इन केस अगर नहीं हुआ तो ओवरकट अर्थ फॉल्ट ट्रिप करा देगी। ठीक है ठीक है, ओवरकट अर्थ फॉल्ट में भी IDMT कर्व के थ्रू वो काम करता है। एक तो इंस्टेंटेनियस होता है, एक IDMT के थ्रू। IDMT का मतलब ये है कि करंट ज़्यादा होएगा तो टाइम कम हो जाएगा, उतनी जल्दी ट्रिप कराएगा। ठीक है ठीक है, ओवरकट अर्थ फॉल्ट होगी। उसके अलावा इनके अंदर जो होते हैं या ब्रेकर के अंदर बोल्ट डिस्क्रिपेंसी रिले होती है कि बाई चांस अगर हमारा ट्रिपिंग कमांड आई और या ब्रेकर लगाने लगे, दो लिम लगे और एक लिम नहीं लगा, तो अंदर PDR ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है उसका मतलब ये है कि आपके दो बोल्ट ऑपरेट हो या एक नहीं हुआ। और उसके अलावा जो है रिले PDR होगी, ओवरकट अर्थ फॉल्ट होगी, DPR होगी। DPR के अंदर भी एक वो रहती है PSW पावर स्विंग ब्लॉकिंग। इन केस सपोज यहाँ 2 सर्किट चल रहे हैं, दोनों पैरेलल में चल रहे हैं, अगर एक सर्किट पे फॉल्ट आ गया और वहाँ से फॉल्ट कट गया, आइसोलेट हो गया, तो क्या होगा कि इसका सारा का सारा लोड एकदम इंस्टेंटेनियस वो जिस टाइम ट्रिप हुआ उसी टाइम दूसरे पे आ जाएगा। जी जैसे दूसरे पे आएगा तो ये एक बार के लिए ना ओवर स्विंग कर जाएगा, मतलब ओवरलोड हो जाएगा। तो उस 10 मिली सेकेंड 15 मिली सेकेंड के लिए ना ये ट्रिप नहीं होना चाहिए। तो PSP ऐसे ही ऑपरेट करती है, वो सेंस करती है कि दूसरे फॉल्ट पड़ा है, तो यहाँ पे अभी बाकी जो रिले है उनको ऑपरेट ना होना चाहिए। 10 मिली सेकेंड के लिए 15 मिली सेकेंड सारा लोड। सर, एक जो एक बस से दूसरी बस पे हम लोड लेते हैं, जब मान लो कोई एक बस पे ज़्यादा लोड है या उसको ट्रांसफ़र करना हो दूसरे लोड पर, वो कैसे करते हो? यहाँ पे ना एक बस कपलर लगा हुआ है, हर एक जैसे बस बाहर आए हैं तो उसके पास ना एक बस कपलर लगा होता है। ये बसें क्या करती हैं, ये बस कपलर क्या करता है, दोनों बसों को कपल कर देता है। ठीक है जी सर सर। तो ये बस 1 और बस 2 है। सर कौन सा है बस कपलर? ये कपल करने का मतलब क्या है कि अभी हमारे पास बस 1 और बस 2 है। ठीक है, कपल करने के बाद ये एक ही बस बन जाएगी। ठीक है जी, दोनों बसें जोड़ दी। ठीक है, अगर हमें लोड शिफ्ट करना है तो हमने बस कपलर हमारा ऑपरेशनल है, तो आप जो दूसरे पे आपने शिफ्ट करा, दूसरे का आइसोलेटर लगाओ पहले का, उसके बाद ओपन कर। ठीक है, और ट्रांसफर बस के लिए काम आता है। और इसके बस कपलर के हेल्प से हम एक प्रोटेक्शन और देते हैं, बस बार प्रोटेक्शन। बस के लिए बस बार प्रोटेक्शन होती है, वो ऑपरेट कराते हैं फॉल्टी कंडीशन में। इन केस बस बार पे कोई फॉल्ट पड़ गया तो उसके लिए बस कपलर के थ्रू करते हैं। वो जर्नली ऐसा जरूर नहीं है, जर्नली वो 220 या उससे अबव जो लाइन है उनसे होता है। वो आप इंस्टॉल 125 कहीं पे भी करा सकते हो, पर जर्नली वो 220 से ऊपर दी जाती है। तो यहाँ पे तो सीटी लगी हुई है ना, 5 फ्लोर की होती है, इसमें 6 फ्लोर है या 3rd फ्लोर जो भी कंपनी डिज़ाइन करती है, वो बस बार प्रोटेक्शन के लिए दी हुई है। यहाँ से अंदर बस बार प्रोटेक्शन के लिए जाएगी। बस बार प्रोटेक्शन के जो रिले हैं उन पर लगेगी, वो करंट मेजर करेंगी। वो जो जितना करंट आ रहा है और जितना बाहर जा रहा है वो सेम होना चाहिए, 10% की वेरिएशन के साथ। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होएगा, 10 भी होता है, 5 भी होता है, वो डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है। अगर उससे ज़्यादा होएगा तो ये सेंस कर लेगी और ट्रिप करा देगी। बस बार तो उनका क्या काम होता है, जो एयर वेव है वो वेव ट्रैप है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हम कैरियर सिग्नल भेजते हैं ना, वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं। वो जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं वो स्टेशन के लिए ना
एक तरह फॉल्ट की तरह काम करता है। हाई फ्रिक्वेंसी होती है तो अंदर अनडिजायरेबल होती है स्पेशली, क्योंकि फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होनी चाहिए स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी, और ये किलो हर्ट्ज में भेजते हैं, मेगा हर्ट्ज में भेजते हैं, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा भेजते हैं। तो ये वो जो कैरियर सिग्नल आएगा उसको ट्रैप कर लेंगे, इसलिए वेव ट्रैप बोलते हैं। ये उस सिग्नल को आगे निकालेंगे। ये डायरेक्शन के लिए यूज भी होते हैं। ये डायरेक्शन के लिए, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए क्या यूज होता है? डायरेक्शन ना, और सीटी की यूज होती है। सीटी पे कनेक्शन यूज करते हैं, स्टार कनेक्शन। सीटी के अक्रॉस ना दो इंडिकेशन होते हैं, P1 और P2। P1 जो सीटी की सेकेंडरी कोर होती है ना, जिस साइड हम P1 रखेंगे उसी साइड का हम स्टार बना देंगे, तो उसी साइड वो डायरेक्शन ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। साइड में स्टार कनेक्शन बनाना होता है, और वो स्टार कनेक्शन सिटी के प्राइमरी और सेकेंडरी के रेफरेंस में बनता है। ठीक है सर। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਰ ਤੇ ਇਹ ਸੀਟੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕਰ ਤੇ ਆ ਹੈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀ ਪੀਟੀਓ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ ਆ ਬੱਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਆਹਾ ਆ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये बस बाहर होगी, ठीक है। ये बस कपलर है, सॉरी ये बस कपलर है, वो होगी बस बाहर 1 2 3, वो बस बाहर होगी। ये वाली बस बाहर होगी, ये बस कपलर होगी, सॉरी वो बस कपलर हो गए, ये बस बाहर होगी। मैनुअली या ऑटोमेटिकली कर सकते हैं दोनों ब्रेकर। ब्रेकर पे क्या है कि अंदर से भी हम TNC के थ्रू या किसी रिले के थ्रू कमांड आ सकती है, ठीक है। TNC के थ्रू हम ऑपरेटर खुद देगा, रिले के थ्रू वो रिले सेंस करेगी, पोर्ट सेंस करेगी, पोर्ट सेंस करने के बाद वो अगर आप नॉर्मल कंडीशन लगी उसे तो ब्रेकर होगी। आइसोलेटर ये है कि मैनुअली ही ऑपरेट होगा, या तो आप नीचे मोटराइज ऑपरेट कराओ या फिर मैनुअली ऑपरेट होती है। सर की इंडक्शन होती है जो हवा में वो करंट आ जाता है, उसके बारे में बताओ। ये इंडक्शन क्या होती है, जैसे ये कंडक्टर आया ना, या कोई भी ऐसे आया कंडक्टर, उसके क्रॉस सर्कुलर फील्ड बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मतलब वो हवा को आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज करने से क्या होता है कि कंडक्टर के पास उस जो आयोनाइज जोन बना है, सर्कल बना है मैग्नेटिक फील्ड, वो कंडक्टर के नज़दीक हवा में स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा उसकी इंटेंसिटी वीक होती जाएगी। तो हमें कई बार क्या होता है कि नीचे झटका महसूस होता है, तो वो कुछ नहीं है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हवा को आयोनाइज कर देता है, और उससे हमें मैंने ना कई पर्सन ऐसे देखे हैं वो वायर लपेट के उसके साथ ऐसे नज़दीक लेके जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी वो हाँ जनरेट हो जाती है। वो आयोनाइजेशन की वजह से। ठीक है, उसका कोई हार्मफुल भी है वो? हार्मफुल है, जैसे कई बार खेतों में क्या होता है कि खेतों में फसलों में पानी दे रखा है या नीचे गिल्ला है, तो क्या आएगा कि वो पानी कनेक्टिंग है, नीचे से ऊपर से आयनाइज हो रहा है और नीचे भी गिल्ला है, तो उसमें क्या है कि कनेक्टिविटी पाथ है जो कंडक्टर से लेके नीचे पानी तक की वो बन जाती है। उसकी वजह से क्या होगा कि झटका लग सकता है। और झटका लगने का मेन कारण क्या होता है कि स्टेप पोटेंशियल होता है। आयनाइजन की वजह से स्टेप पोटेंशियल होता है, क्योंकि हमारे दो पैर ये रहिए, अगर हम इनको ना जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे तो क्या आएगा कि एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल बचेगा, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बचेगा। अगर वो नज़दीक आएंगे तो ही झटका लगेगा। नहीं, दूर जाएंगे, अच्छा जितना दूर जाएंगे तो झटका लगेगा, झटका अगर लगेगा। नज़दीक रहेंगे जितने लगेगा उतना कम झटका लगेगा। और अगर हम पैर जोड़ लेंगे या एक पैर पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो ठीक है, झटका वो नहीं अच्छा वो ऐसे बन जाएगा। रिटार्डेशन पोटेंशियल बन जाता है। ठीक ठीक हाँ, ठीक ठीक ठीक। एक तरह से स्टेप पोटेंशियल बोल देते हैं, रिटार्डेशन पोटेंशियल। आप ये देखो, ये ग्रेवलिंग की हुई है यहाँ पे, आप जितना यहाँ पे देखो ये बची हुई है ना ग्रेवलिंग की है, ये किस लिए की गई है? ये इसी वजह से की है कि ताकि स्टेप पोटेंशियल है ना वो जनरेट हो सके। अब ये डायरेक्ट जो नीचे है सरफेस, अर्थ सरफेस, उस कॉन्टैक्ट में नहीं है। ऊपर जो ग्रेवल होते हैं वो गैप मेंटेन करते हैं,
और जैसे हम इसमें पैर रखते हैं ना तो नीचे गैप होता है, तो स्टेप पोटेंशियल पूरा बन नहीं पाता, जिससे जो भी यहाँ पे आते हैं यार्ड में। ये बजरी इसलिए डाली जाती है हाँ, अगर ये मेन- सूखा रहे। मेनली इसलिए रहती है, सूखा नहीं। ये जुत्ते के नीचे जैसे हम लेते हैं ना, तो जुत्ते के नीचे गैप रहे। एक तो यहाँ पे रखे तो यहाँ पे गैप नहीं है, ये गिल्ला है तो पूरा का पूरा सरफेस जुड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे गिल्ला है तो ये बीच में गैप रहेगा। ठीक है, गैप रहेगा तो फिर वो स्टेप पर चलते पूरा नहीं होगा। ठीक। ये देखिए यहाँ पे भी इसलिए डाला हुआ है बड़े बड़े पत्थर। इसका भी सर कोई फर्क होता है, जैसे यहाँ पे बड़े पत्थर डाल रखे हैं नहीं, यहाँ ऐसा कोई फर्क नहीं है। आप जितने ज़्यादा बड़े पत्थर रहेंगे उतना कम स्टेप कर दोगे। ठीक है। ऐसा कोई फर्क नहीं है। बस इसलिए यहाँ पे है, ये ट्रांसफार्मर है जो कई बार इन केस अब नॉर्मल कंडीशन में कुछ आग लग गई या कुछ और फर्क पड़ गया, तो ऑपरेटर के पास ये फैसिलिटी है कि यहाँ पे जो वाला है वो खोल दे, और वो खोलने से अब ये अर्थ रहेगी ना तो उस पर फैल जाएगा। तो इसके नीचे ना एक अर्थ फिट बनाया, पूरा खड्डा बनाया हुआ है, उस खड्डे के अंदर चला गया, उस खड्डे के इस पाइप के थ्रू इसके अंदर चला गया, इसके अंदर सारा है, ताकि वो जो आग लगी है कुछ भी लगा वो ज़्यादा ना हो सके। बट ये ट्रांसफार्मर है, इसकी ये ऐसी साइड है, ये ऐसी साइड है, इस पे सर इसके अंदर भी स्टार डेल्टा बने होते हैं, या स्टार टू स्टार भी होता है, या डेल्टा टू डेल्टा स्टार होता है? हाँ स्टार डेल्टा क्या होता है कि जो जर्मिनेशन है उस पर डेल्टा स्टार होता है, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन हैंड होता है उस पर स्टार डेल्टा होता है। बीच में ट्रांसफर होते हैं ना, स्टार टू स्टार होता है। स्टार टू स्टार होते हैं। अब पहले क्या था कि 3 वाइंडिंग होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो जो प्राइमरी और टर्सरी होता है वो दोनों स्टार होते थे, जो बीच की वाइंडिंग होती है वो डेल्टा होती है। लेकिन अब जो नए ट्रांसफार्मर मैकेनिज्म हो गए हैं तो उन पर 2 वाइंडिंग होती है, दोनों स्टार स्टार होती है। टर्सरी क्या होती है? टर्सरी वाइंडिंग होती है, होती थी, अब बहुत कम रेयर चांस है। ट्रांसफार्मर के अंदर ना एक हार्मोनिक इफेक्ट होता है। हार्मोनिक इफेक्ट एक बहुत बड़ा मतलब एक अलग से कंसेप्ट है। वो हार्मोनिक इफेक्ट क्या करता था ट्रांसफार्मर में, लॉसी बढ़ा है, इससे इसके ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम होती है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए टर्सरी वाइंडिंग यूज किया। जो टर्सरी वाइंडिंग होती थी वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक होती थी, और वो हमेशा डेल्टा में कनेक्टेड थे। अब जो ट्रांसफार्मर है स्टार स्टार है, चाहे वो वोल्टो ट्रांसफार्मर हो या टू वाइंडिंग। सर अब एक मैंने ये भी देखा है, पहले वो होते थे ना वो वोल्टेज, तो अब को कम कर दिया उन्होंने वो ट्रांसफार्मर बनाने, वो अब डायरेक्टली बनाते हैं। मैंने वो बहुत रेयर देखे हैं, जो पुराने वाले हैं वही लग रखे हैं, ऑटो जो नए हैं वो नहीं है। ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटो तो यही है। ऑटो वोल्ट तो यही है, नहीं, voltage वो varying- टेप voltage- निकालते थे उसमें से। नहीं वो ज्यादा वोल्टेज कम भी कर देते थे हाँ जी, हाँ उससे। जी। वो ऑटो पता क्या, टेप वो निकालते नहीं, हुए। वो टेपिंग होती है ट्रांसफार्मर में। वोल्टेज वेरिएक बोल रहे हो जो आप, हाँ। वोल्टेज वेरिएक ना आप चार्जर के अंदर भी देख सकते हो, जिसके अंदर हम वोल्टेज किसी एक जगह वेरिएबल टैप कर देते हैं, वो वोल्टेज को वेरी करता है। ऐसे इसके अंदर भी ना OLT से है, ऑन लोड टैप चेंजर, तो उससे ना टेप चेंज कर सकते हैं। टेप क्या करता है एक्चुअली, एक वाइंडिंग की एक नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको सेलेक्ट करता है, 3 नंबर ऑफ टर्न सेलेक्ट करके उससे वोल्टेज वेरिएशन हो जाता है। सर एक कल आप बता रहे थे मेरे को वो फॉर्मूला नंबरिंग ऑफ टर्न का, वो एक बार फिर बता दो। ये ना पावर है, पावर सेव रहेगा। पावर इज इक्वल टू √3 VI cos phi होता है इन केस ऑफ 3 फेज। सिंगल फेज होता है VI cos phi, तो यहाँ पे 3 फेज है तो √3 VI cos phi होता है। और जो फाई होता है, फ्लक्स होता है, वो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। मतलब फाई प्रोपोर्शनल टू n, मतलब फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। फ्लक्स इक्वल टू NI, नंबर ऑफ टर्न इनटू में करंट अक्रॉस सिस्टम। तो फ्लक्स है जो वो नंबर ऑफ टर्न और करंट पे डिपेंड करता है। और जैसे यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होती है, वो होता है E इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी होता है। और जो ये होता है प्रोपोर्शनल होता है फाई के फ्लक्स के। तो ये फार्मूला सारे वैसे
इसमें ना एक ट्रांसफर रेशो का फार्मूला ये होता है E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2 इक्वल टू K। E2/E1 सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइड बाई प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू N2/N1 सेकेंडरी टर्न अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइड बाई टर्न अक्रॉस प्राइमरी वाइंडिंग इज इक्वल टू I1/I2 करंट अक्रॉस प्राइमरी वाइंडिंग डिवाइड बाई करंट अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग ये होता है इज इक्वल टू K। इसी प्रिंसिपल पे काम सर। और इसमें जो ऑयल होता है उसका भी ऑयल ऑयल ना इसमें मिनरल ऑयल होता है, उसको नफ्था ऑयल भी कहते हैं। वो मिनरल का बना होता है और उसका मेन पर्पस होता है कूलिंग। कहते हैं कि इसके जो अंदर कोयल है उसको भी ठंडा रखने का काम है हाँ। ओनली। कूलिंग क्या करता है कि जो इसके अंदर वाइंडिंग है उसके अंदर जो सप्लाई होती है उसमें हीट जनरेट होती है। जो हीट है उसको मतलब कूलेंट की तरह काम करता है। दूसरा ये मेन बॉडी से आइसोलेट करता है, तो आइसोलेशन का काम होता है कूलिंग और आइसोलेशन। यहाँ से पकड़ लीजिए वो स्टार्ट होगी। मैनेजमेंट के लिए ना एक से 10 फैन लगे हुए हैं। देखो आप ये फैन लगे हुए हैं, रेडिएटर लगा हुआ है और ये मीटर पंप लगा है और थर्मोसाइफन का दो काम है, एक फिल्ट्रेशन और दूसरा कूलिंग। ठीक है, क्या होता है कि सबसे पहले जैसे भी इसके अंदर तेल अगर मान लो गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ा ट्रांसफार्मर और ऑयल का भी टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि अगर मान लो टेम्परेचर 55 चला गया, 55 to 60 सेट कर रखा है तो उसके अंदर होता है ऊपर से इसके अंदर थर्मोसाइफन ये रेडिएटर के अंदर आएगा, रेडिएटर से नीचे आएगा। जैसे ही इसमें आएगा ना रेडिएटर की फ्लिंज है इनके अंदर आएगा ना, तो इसके अंदर पंखे चल जाएंगे, फैन चल जाएंगे और हवा चली जाएगी। उससे क्या होगा कि इन्वर्स स्केयर लॉ होता है। इन्वर्स स्केयर लॉ होता है कि अगर आपका गैप कम है तो हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा ठंडी हवा जाएगी तो तेल ठंडा हो जाएगा, ऊपर से आएगा नीचे से चला जाएगा। अगर फिर भी तेल बढ़ गया ज़्यादा गर्म है तो पंप कर देते हैं, पंप के थ्रू प्रेशर। और अगर ऑयल का टेम्परेचर जानना हो उसके लिए क्या वहाँ पे आके 3 इंडिकेटर लग रहे हैं, WTI, OTI और वीर जी WTI HV, WTI LV। ये वीर जी देखिए चल रही है। चल रही है। आ जाओ बंद हो गई गाड़ी। आ जाओ भैया। WTI HV, WTI LV, OTI। Okay. इंडिकेटर है इसके अंदर ना एक मशीन देते हैं S1, S2, S3, S4। ये अलार्म के और ट्रिपिंग के टेस्ट होते हैं। पहले अलार्म आएगा, पहले तो पंखे चलेंगे, पंखों के लिए क्या आएगा कि 55 to 60 सेट करा हुआ है। उसके बाद 80 to 85 अलार्म आएगा। अगर उससे भी ज़्यादा बाई चांस बढ़ गया तो ये ट्रिप करा देगा ट्रांसफार्मर, ताकि प्रोटेक्शन मतलब कोई ऐसा हार्मफुल वो ना हो। ठीक है जी। ये देखिए ये HV की, LV का और ये OTI का। ऊपर उनके वो लगे हुए हैं, जैसे फैन चलाना हो, ये साइफन चलाना हो, ये CSS है, सारे कंट्रोल कूलिंग कंट्रोल कूलिंग सिस्टम है, CCS। ठीक है जी। इसके थ्रू ही हम ऑटोमेटिकली और मैनुअली कूलिंग सिस्टम है जो ट्रांसफार्मर का पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है।